Welcome to my channel. Today I am going to talk about the portrait of a lady. Summary of a portrait of a lady. Summary of a portrait of a lady. The portrait of a lady. The portrait of a lady is a real story of the writer's grandmother. The portrait of a lady is the portrait of a lady is a real story of the writer's grandmother. The name of the writer is Kushwant Singh. His grandmother was an old lady. The writer tells us that's the story of the childhood that he had spent with his grandmother. The writer has explained his relationship with his grandmother over the years. He thinks about her daily activities and how she grew as a character over time. He mentions her appearance, which assists in creating a mental impression of her in the reader's mind. The summary of this text will brief you about the life of the writer and his grandmother. All the beautiful and emotional moments are present in this summary. The summary will tell you about the beautiful relationship that the writer had with his grandmother. Theme of this text: the writer recalls his So if I talk about the theme of the text, the themes can be interpreted as spanning many stages of the author's life. During childhood, the key themes were seen to be innocence, admiration, and love between a grandmother and her grandson. During the author's stay in the city, however, the two were linked by themes of separation and unfamiliarity. Finally, following his return from abroad, the dominant subject appears to be a sense of reunion, as well as a bittersweet ending. The portrait of a lady. If we talk about the summary, the writer recalls his grandmother as short, healthy, and slightly bent. His hairs were silver in color and were scattered messily on her wrinkled face. She used to walk around the whole house in the white clothes. She kept her one hand resting on her waist and the other hand was telling the beads of her rosary. The writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. He compares her calm face with the winter landscape. During their lengthy stay in the village, grandmother woke him up from the bed in the early morning, plastered his wooden sled, organized his breakfast, and sent him to the school. The temple was connected to the school. She sat inside and studied the sacred text while the children learned the alphabet. On their way back to home, she used to give the stale chapatis to the street dogs. A turning point in their beautiful relationship arrived when they went to live in a city. Despite the fact that they shared a room, their relationship started to grow apart. Now, the writer used to go to the city school on a school bus and studied subjects like English, physics, mathematics, and many more subjects that his grandmother could not understand at all. His grandmother could no longer go to school with him to send him. She felt upset that there was no teaching about God and scriptures at the city school. Instead, he was given music lessons, but she said nothing. She thought music was dreadful. It was just good for prostitutes and beggars. According to her, it was not intended for gentlemen. When the writer went to university, he got a separate room in his house. The common link of the relationship between the grandson and the grandmother was broken now. Grandmother rarely talked to anyone in the house now. The writer's grandmother quietly accepted her loneliness. She was constantly occupied with her spinning wheel and reciting prayers, and she hardly ever spoke to anyone. She took a break in the afternoon. Her daily routine consisted of breaking bread into pieces and giving it to the birds. The birds would perch on her legs and head
and even her shoulders. When the writer was living on a trip abroad for his further studies, his grandmother did not get disturbed at all. Rather, she went to the train station to say goodbye. But she didn't say anything and merely kissed his forehead. Her lips were moving in prayer, her thoughts were consumed by prayer, and her fingers were busy reciting the story of the beads on her rosary. Seeing her grandmother at this old age, the writer was thinking that it might be his last meeting with his grandmother. But when he came back home after a duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him back, and he saw her celebrate his return. The next morning, after the return of his grandson, she got ill, although the doctor told them that it was a slight fever and would go away very soon. Still, she could foresee that her time to leave this world was near. She did not want to waste her time talking to someone. Her fingers were busy reciting the story of the beads on her rosary. She went to her bed praying and telling the beads till her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless hand. Her body was discovered on the floor, wrapped in a red shawl after she died. To grieve her death, thousands of sparrows flew in and sat dispersed around her body. All the sparrows flew away without making any noise when the dead body of the old lady was carried away for the last rites. Conclusion of the Portrait of a Lady. To sum up the Portrait of a Lady summary, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them and loved each other a lot. The story tells us how beautiful a relationship can become between grandson and his grandmother. Let's talk about this. Let's read out the text. Portrait of a Lady by Kushwant Singh. My grandmother अध्याय द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लेखक और उसकी दादी की कहानी है। दादी एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे में खुड़िया थी। पिछले 20 वर्षों से लेखक ने उससे हमेशा ऐसे ही देखा था। वो इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वो युवा और सुंदर थे। वो सुंदर है। जिसका पति है वो छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। लेखक ने अपने दादाजी का चित्र देखा था। एक बूढ़ा आदमी पगड़ी पहने और लंबी सफेद दाढ़ी जिनके सीने को टक रही थे। लेखक के लिए उनके दादा एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे जिसकी पत्नी और बच्चे हो सकते थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे पोते पोतियां हो सकती थी। उनकी दादी
stylish, spotless बात में घर के चारों ओर घूमती थी। उनका एक हाथ कमरे पर टिका होते था और दूसरा हाथ उनकी माला के मोतियों की गिनती कर रहा होता था। शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे। वो ऐसे जागती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो उसके लिए दिन के लिए आवश्यक चीज़ों को वेक करती थी और हर दिन उसे स्कूल ले जाती थी। वो स्कूल के पास के मंदिर पर जाया करती थी। शास्त्रों के पढ़ने की उनकी दिनचर्या था। लेखक उन्हें बच्चों के साथ बड़ा में बैठकर अक्षर और सुबह की प्रार्थना गा रहे होते थे। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरा दादी हर किसी का दादी की तरह बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for 20 years. Wrinkled for 20 years that I had known her. जब मैं उसको जानती थी उस समय वो 20 साल बूढ़ी हो चुकी थी। मतलब 20 साल पहले उस खूबसूरत थी। 20 साल में जब उसको जाना, उसको देखा, उससे 20 साल पहले से भी बूढ़ी थी। People said that she had once been young and pretty. People said that she had once been young and pretty. People said that she had once been young and pretty. वो बहुत जब वो यंग थी तब वो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, उसका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास ही नहीं होता। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम पे जो मेंटल पीस है उसके ऊपर मेरा दादा का पोर्ट्रेट वो झूलते थे। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। वो एक बहुत बड़ा पगड़ी पहने थे और ढीला ढाला क्लोथ्स पहने थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उसका बहुत लंबा लंबा सफ़ेद दाढ़ी थे जो उसका चेस्ट को ढक दिया था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। एटलीस्ट 100 years, वो 100 साल बुढ़ा लगता था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन। वो इस तरह का पर्सन नहीं था जिसका पत्नी थी और चिल्ड्रेन थे। He looked as if he could only have lots. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उसको ऐसे देखकर लगते थे कि उसको बहुत सारे बच्चे हैं। As for my grandfather being young and pretty, मेरे grandmother बहुत सुंदर थी और pretty थी। The thought was almost revolting. इतना सुंदर थी कि सोच नहीं सकते। She often told us of the games she used to play as a child.
वो हमेशा कहती थी वो बचपन में कौन सा खेला खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड. यो बहुत ही अद्भुत लगता था ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज्ड टू टेल अस. हमें तो ऐसे एक फेबल की तरह ये लगता था, एक प्रॉफिट, एक कोई मुनि हमें ज्ञान दे रहा है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, स्लाइटली बेंड. वो उसका हाइट उतना नहीं था, मोटी थी और झुका हुई रहती थी. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. उसका चेहरे पे रिंकल आ गए थे और वो इधर उधर घूमते थे. We were certain she had always been as we had. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have ever grown older. वो इतना बूढ़ी थी कि उससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती. And had stayed at the same age for 20 years. और 20 साल से इसी एज में, इसी उम्र से थे. She could never been pretty. She could never have been pretty. वो इतना सूरत नहीं था पहले, but she was always beautiful. वो हमेशा ही सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो सफ़ेद स्पॉटलेस वाइट, वो सफ़ेद एकदम बिल्कुल सफ़ेद वाला कपड़ा पहनते थे और उसके एक हाथ में रोजरी रहते थे, वो पुती माला वो जपते थे और दूसरे हाथ उसके कमर में थे. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उसका सिल्वर रॉक्स वो बिछड़े थे और वो पेल थे, पकड़ फेस थे. Yes, she was beautiful. वो खूबसूरत थी. She was like the winter landscape in the mountains. उसको इतना सफेद थे कि उसको देख के लगते थे कि माउंटेन्स में विंटर लैंडस्केप है. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. और एक प्योर वाइट सेरेनिटी थे जो शांति से सांस लेते थे. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छा फ्रेंड्स था, दोस्त था. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we are constantly together. मेरे पिता माता ने ये छोड़ गई थी उसके पास जब वो दोनों सिटी में चले गए. We were constantly together. हम दोनों हमेशा ही साथ थे. She used to wake me up in the morning. सुबह वो मुझे जगाती थी. And get me ready for school. स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous song while she bathed and dressed me in the hope. जब वो मुझे नहाते थे और मुझे ड्रेस पहनाते थे तब वो मॉर्निंग प्रेयर करते थी और इन द होप यही सोचती थी दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. मैं उसका वो प्रेयर वो सुन के मुझे भी वो आने लगेगा. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं वो सब कुछ सुनती थी क्योंकि मुझे उसका वॉइस पसंद था. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. लेकिन
but never bothered to learn it. लेकिन इससे सीखने के लिए काफ़ी बॉदर नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. उसके बाद वो मेरा वुडन स्लेट ले गए, एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. जो वो बहुत अच्छे से धो लिया और येलो चॉक से प्लास्टर किया. ए टिनी अर्दन इंक पॉट एंड ए रेड पेन टाई देम ऑल इन ए बंडल. अर्थन इंक पॉट में रेड पेन लेके वो सब कुछ टाई देम ऑल इन ए बंडल, वो सब कुछ पुतला करके बांधते थे. एंड हैंड इट टू मी, मेरे हाथ में देते थे. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चापाती. सुबह खाने के बाद स्टील चापाती विथ ए लिटिल बटर से लेके स्टील चापाती खाने के बाद. एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. उसके बाद शुगर, इसके ऊपर शुगर देने के बाद वी वेंट टू स्कूल. हम लोग स्कूल चले गए. शी कैरेड सेवरल स्टील चापातीस विद हर फॉर विलेज डॉग. विलेज डॉग्स के लिए वो कहीं चापातीस ले लिए थे. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल. मेरे ग्रैंड मदर ने हमेशा स्कूल जाती थी विथ मी, मेरे साथ. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. क्योंकि वो स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ अटैच थे. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट. प्रिस्ट जो है वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया. एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह का प्रेयर भी कराया. While the children sat in rows on either side. जब चिल्ड्रन साइड पे बैठे थे बरामदे के साइड, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस. अल्फ़ाबेट पढ़ते थे और कोरस करते थे. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. मेरे ग्रैंड मदर दादी अंदर बैठ के स्क्रिप्चर पढ़ते थे. When we had both finished, जब हम दोनों को ख़त्म होती थी, we would walk back together. हम दो लोग एक साथ वापस आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इसी समय village dogs जो है वो हमें मंदिर में मिलते थे. This time the village dogs they followed us to our home, growling and fighting with each other. वो जो कुत्ते थे वो हम लोगों को पीछे पीछे घर चले आते थे और वो एक दूसरे से झगड़ते थे, मारते थे. फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम. हम जो चपातीस जो थे उसके तरफ जब फेंकते थे वो सब कुछ जो कुत्ते थे एक दूसरे को मारते थे और वो सब कुछ खा लेते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स ने सिटी में सेटल हो गए थे, they sent for us. वो लोग हम लोगों को हम लोगों को बुला लिया. That was a turning point in our friendship. That was a turning point in our friendship. यही है वो टर्निंग पॉइंट हमारा फ्रेंडशिप में. अब हमारा फ्रेंडशिप टूटने वाला है. Although so here we get that urban life is something that is breaking. Rural life is something which can unite, but urban life is something that breaks the relationship. It breaks their friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Although we shared the same room, हम दोनों एक ही रूम में शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. मेरे दादी ने मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. मैं मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाते थे. देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स. रास्ते में कोई कुत्ते नहीं था. शी टूक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टियर ऑफ आवर सिटी हाउस. मेरी दादी वो जो सिटी हाउस में जो कोर्टियर्ड है वहाँ वो जो स्पैरोस रहते थे, चढ़ई पक्षी, उस चढ़ई पक्षी को वो खिलाते थे. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर.
जब बरसों बीतते गए, हम दोनों की दूरियां भी बहुत बढ़ते गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कुछ समय के लिए से वो हमें जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी दैट। जब मैं वापस आती थी वो मुझे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। टीचर ने हमें क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मैं उनको बताती थी कि जो इंग्लिश वर्ड्स सिखाया, वेस्टर्न साइंस का कुछ सिखाया, द लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ सिखाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, कैसे विश्व घूमती है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह सिखाया। दिस मेड हर अनहैप्पी। उनको ये पसंद नहीं था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वो मेरे लेसन्स के लिए क्या कर भी क्या सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स। उससे ये विश्वास नहीं होती थी। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेक्ट। That there was no teaching about God and scripture, no teaching about God and scriptures, भगवान स्क्रिप्चर, इसके बारे में तो कुछ सिखा ही नहीं है। वन डे आई अनाउंस दैट आई वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन तो मैं उसको बता दिया कि अब हमें म्यूजिक सिखाएंगे स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो तो बिल्कुल घबरा गई। उसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद है। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्योंकि उससे म्यूजिक का मतलब क्या है। म्यूजिक का मतलब है कुछ बहुत ही घिनौना चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। इट वॉज द मोनोपोली इन ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स। इट इज़ गुड फॉर हार्लोड्स एंड बेगर्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स, नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। जो जेंटलमैन है उसके लिए ये सब कुछ अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका जो साइलेंट है, चुप रहना, वो यही समझता है कि उसका कोई सहमत नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो बहुत ही कम मुझे बात किया। When I went to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. मुझे अपना एक कमरा मिल गया। The common link of friendship was snapped. हमारा जो बीच में जो दोस्ती थी वो एकदम टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरा जो ग्रैंड मदर थे, दादी थे, वो अपना seclusion, अपना अकेलापन को स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। ओ ज़्यादा बात नहीं करते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। फ्रॉम sunrise to sunset. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक वो अपना व्हील चरखा जो है उसे घुमाती थी and reciting prayers और जपती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. जब दोपहर में वो बहुत ही रिलैक्स फील करती थी जब वो चढ़ी पक्षियों को खिलाती थी. While she sat in the veranda, जब वो बरंदा में बैठी थी, breaking the bread into little bits, जब वो ब्रेड जो है उसको थोड़ा सा लिटिल बिट को थोड़ा सा टूटी थी. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. बहुत सारे पक्षी आ जाते थे उसके अगल बगल में और वेजिटेबल बेदलम ऑफ चार्पिंग्स. बहुत लोग पक्षियों बहुत शोर मचाते थे और उसको चारों ओर से घिरा रहता है. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ पक्षी आके उसके पैरों के ऊपर बैठ जाते थे. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. कुछ उसके
कंधों पे बैठते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ आके उसके माथे पे बैठते थे। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, ओ हंसती थी लेकिन उनको उस पक्षियों को कभी भगाती थी नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उसके लिए दिन में यही जो पल है, 1 घंटा, यही उसके सबसे खुशी समय थे। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं फर्दर स्टडीज के लिए दूर चले जाते थे, I was sure my grandmother would be upset. मैं निश्चिंत था कि मेरे ग्रैंडमदर वो अपसेट होगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए चला जा रहा हूँ बाहर। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसका जो अब उम्र है, इस उम्र में कोई बोल नहीं सकते कि वो कब चल बसे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो दादी है वो बोलती थी, वो बोल सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो कभी भावुक नहीं होती थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो आती थी और मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में। बट आई डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ भी इमोशन नहीं देखा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो हमेशा जपती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो हमेशा प्रेयर में, प्रार्थना में खोई रहती थी उसका मन। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स फॉर हर रोजरी, उसका जो उंगलियां थी वो हमेशा जो रोजरी है, उस रोजरी का जो पुतलियां है, बीट्स, उसको हमेशा हाथ उंगलियों से गिनती थी और जपती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और मेरी फोरहेड में एक चुम्बन दिया। एंड व्हेन आई लिफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जब मैं छोड़ दिया, व्हेन आई लिफ्ट आई चेरिश, जब मैं निकला तो मैंने फील किया उनका जो मॉइस्ट इम्प्रिंट है वो मेरे फोरहेड पे ललाट में छपी हुई है। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैंने सोचा था शायद यही है मेरी और दादी के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट का आखिरी निशानी। क्या पता वो जिंदा रहे या मर जाए, क्योंकि इस उम्र में कौन कह सकता है कब चल बसे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आ गया। एंड वॉज मीट हर एट द स्टेशन, और उसके साथ, दादी के साथ स्टेशन में मिला भी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो तो एक दिन भी ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब वो मुझे अपने बाहों में लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, हमेशा वो प्रार्थना करती थी, जपती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले दिन में, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आर विद हर स्पैरोज, उसका जो बहुत ही खुशी वाला मोमेंट था उसका उस चड़ोई स्पैरो के साथ था। whom she fed longer and with frivolous rebukes, उसको खिलाया था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, सुबह में उसका ऊपर एक परिवर्तन आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं किया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, वो अगल बगल के आसपास की महिलाओं को लेकर एक ग्रुप बनाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ड्रम लिया। स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाया। बट फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द स्वैगिंग strings of the dilapidated drum,
वो जो ड्राम थे वो तो नए नहीं थे, बहुत ही पुराना था। उसका जो ड्राम है उसका जो स्किन है वो डायलेपेटेड, मतलब एक वो ढीला हो गया था, तो उसको लेके बचाते थे और गाया करती थी ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उनको रोकना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मैंने इस पहली बार देखा उन्हें प्रेयर नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। अगले दिन सुबह वो बहुत ही असुस्त हो गया। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने आके बोला कि थोड़ी सी बुखार है, ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड फादर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो दादी है वो कुछ और ही सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बोला कि उसका जो अंत वो करीब आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने बोला कि और कुछ ही और घंटे बच्चे हैं और वो जो लास्ट चैप्टर है वो उससे पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए वो हमसे बात करके अपना टाइम, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वी प्रोटेस्टेड, हम लोग प्रोटेस्ट किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन वो हमारा जो प्रोटेस्ट है उससे नज़रअंदाज किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग। उन्होंने बिस्तर पे सो गया एंड टेलिंग हर बीट्स, और जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग। हम लोग के शक हुआ कि हुआ नहीं, उसका जो लिप्स है, ठोट है, वो बंद, वो बीरबराना बंद कर दिया। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। जो रोजरी थे वो उसका हाथ से गिर गया। द ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक पीसफुल पैलोर, उसका चेहरे पे एकदम शांत सा भाव आ गया। वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमें पता चला, हम लोग समझ गए कि वो अब नहीं रहे। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हम लोग उससे बिस्तर से उठाया एंड एज इज कस्टमरी, और प्रथा के अनुयायी, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड में रखा, एंड कवर्ड हर विथ ए रेड शाउड, उसको एक रेड शाउड लेके उसको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ ही घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। सुबह शाम को हम लोग उसके घर में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। द सन वॉज सेटिंग, had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूरज जो थे वो बरामदा में आके किरण देती थी। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड। हम लोग कोर्टयार्ड में स्टॉप हो गया। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर द शी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर ऑन द फ्लोर। बहुत सारे पक्षी उस फ्लोर में आके किचिर मिचिर करते रहे। देयर वॉज नो चार्पिंग, वो लोग वहाँ कोई चार्पिंग नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। बर्ड्स के लिए हम लोग बहुत ही दुख होती थी। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। मेरे माँ उस पक्षियों के लिए कुछ रोटियाँ ले आके आए। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्बल्स। उससे इसे टुकड़ों में उससे टुकड़े टुकड़े करे। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और मेरे जो ग्रैंड मदर जैसे करते थे। एंड थ्रू इट टू देम, उन लोगों को खाने के लिए दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। स्पैरो उस ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया। व्हेन वी कैरेड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम लोगों ने ग्रैंड मदर की शब्द हो लेके गया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो लोग चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट
द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो झाड़ूदार थे वो जो ब्रेड क्रम्स थे उनको डस्टबिन में छोड़ के आए। सो ये थी